تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ انتخابی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے اور حلقہ پی پی 157 کے عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، جبکہ حلقے کی سڑکیں گلیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، جبکہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں اور قاصر روڈ، کینچی مرسدو، اتحاد پارک، جاوید کالونی سمیت دیگر علاقے حلقے کا حصہ ہیں۔ بات کریں گے راہیل علی سے۔ بتائیے راہیل۔ جی 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ تمام پارٹیوں کی جانب سے بھرپور انتخابی مہم تو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ شہر لاہور کی اس سڑکوں پر جو ہے وہ انتخابی بینرز بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن انتخابی رنگ ابھی تک جمتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں موجود ہوں پی پی 157 کے علاقے میں، اور یہ جو ہے وہ پوش علاقہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ پسماندگی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، ہر دفعہ الیکشن آتے ہیں، دعوے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن علاقے کی حالت ظاہر بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، کیا کہیں گے، کن مسائل کا سامنا ہے؟ حال تک نہ کوئی گیس آتی ہے، 4 مہینے ہو گئے گیس دے پیچھے نہ کھپتے ادھر بھی جا رہے ہیں، دفتر والے بھی کوئی نہیں سنتے، انج لکڑاں بال بال کے انج مرے پے ہیں، سلنڈر لیا نہیں جاتا، نہ مہنگائی تو مہنگائی ودی جاتی ہے، چھڑکاں انج ٹوٹیاں بھجیاں، نہ لائٹ آ رہی ہے، نہ کوئی گل نہ کوئی بات ہے۔ تو الیکشن میں کسے سپورٹ کریں گے؟ مسائل تو حل نہیں ہو پا رہے، عوام کے دعوے بڑے کیے جاتے ہیں تمام لوگوں کی جانب سے، پارٹیوں کی جانب سے۔ ہاں جی، ہم تو شہر کو ووٹ دیں گے کیونکہ اس نے کام بہت کیا ہے۔ ہاں جی، اس نے کام بہت کیا ہے، میٹرو چلائی اس نے، اور ٹرین اس نے چلائی ہے۔ علاقے کے مسائل پہ بات کرنی ہے، کوئی بتانا چاہے گا کہ علاقے میں کون کون سے مسائل ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو نہیں موجود ابھی تک؟ مہنگائی بڑی ہو رہی ہے، اور نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، گیس بھی نہیں آ رہا، غریب آدمی ہے، مجبوری ہے، لکڑا بال گزارا کر رہے ہیں، نہ گیس آ رہی ہے، دفتر والے سنتے نہیں ہیں بات۔ علاقے کے جو بڑے مسائل ہیں وہ گیس کے ہیں، ٹوٹی سڑکیں ہیں، صاف پانی موجود نہیں ہے۔ یہ علاقہ جو ہے وہ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2.25 لاکھ کے قریب ہے۔ 1,15,000 جو ہے وہ مرد ووٹر ہیں، 1,08,000 کے قریب خواتین ووٹرز ہیں۔ مجموعی طور پر حلقے کی جو آبادی ہے وہ 4 لاکھ سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اہم علاقے جو ہیں وہ اس حلقے میں غازی روڈ ہے، مست اقبال روڈ ہے، چونگی امر صدو کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ منور آباد ہے، ستارہ کالونی ہے۔ یہ تمام علاقے ہیں جو اس حلقے میں شامل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ 2024 میں جو امیدوار ادھر سے منتخب ہوتا ہے وہ عوام کے امنگوں پر پورا اتر پاتا ہے یا نہیں؟ جی حلقہ این اے 126 اور پی پی 162 مسائل کی اماجگاہ ہے۔ مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہے، جبکہ مین بولیورڈ، جوہر ٹاؤن اور عبدالحق روڈ کو ملانے والی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ این اے 126 سے مسلم لیگ نون سے ملک سیف الملوک کھوکھر اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ توقیر عباس کھوکھر، جبکہ جماعت اسلامی کے امیر العظیم مد مقابل ہیں۔ این اے 126 کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، حلقہ این اے 126 اور پی پی 162 مسائل کی اماجگاہ ہے، مکین پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ مزید تفصیلات دیں گے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ ارمناز، 3 دن بعد جو ملک میں عام انتخابات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ 8 فروری کو عام انتخابات کا جو میلہ ہے وہ سج جائے گا، لیکن اس سے قبل اگر شہر لاہور کی بات کی جائے تو مختلف جو حلقہ جات ہیں ان کا جو سروے کیا گیا وہاں پر دیکھا گیا کہ ماضی کی جو حکومتیں ہیں ان کی طرف سے یہاں کی عوام کی بہتری کے لیے اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے صرف دعوے ہی کیے گئے، لیکن عملی طور پر جو کام ہے وہ سامنے نہیں آئے۔ میں اس وقت موجود ہوں این اے 126 اور پی پی 162 میں، اور یہاں کا جو سروے کیا گیا تو یہ این اے 126 کی جو کانسٹیچوئنسی ہے یہاں پر زیادہ تر جو آبادیاں ہیں وہ پوش آبادیاں ہیں، جو سوسائٹیاں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بیشتر ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی موجود نہیں ہے، گندے پانی کا نکاس نہیں ہوتا، گرین بیلٹس گندگی کی اماجگاہ بن چکی ہیں، جو گندا پانی ہے اس کا سڑکوں پر بسیرا ہے۔ اس وقت جو اس حلقے سے امیدواران ہیں وہ آ کر اپنے ووٹرز کو مل کر بڑے بڑے دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن ماضی میں بھی ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اس علاقے میں جو کام ہے وہ نہیں کیا گیا۔ پہلے اس علاقے کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ یہ این اے 126 پی پی 162 میں احمد چوک سمسانی روڈ ہے، مرکزی شاہراہ ہے جو کہ مین بولیوارڈ، جوہر ٹاؤن، خیابان فردوسی اور عبدالحق روڈ G1 مارکیٹ کو منسلک کرتی ہے، اور اس سڑک کی حالت ظاہر ہے، سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جو گزشتہ 2 روز میں بارش ہوئی اس بارش کا جو بارشی پانی ہے وہ ابھی تک اس سڑک پر موجود ہے، جس کا ابھی تک یہاں سے نکاس ممکن نہیں ہو سکا۔ علاقہ مکینوں کو یہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا
सामना करना पड़ रहा है। माजी में जब ये स्ट्रक्चर प्लान रोड लिंक रोड तमीर की गई तो उस वक्त इस सड़क के दरमियान में एक खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाई गई ताकि जो शहर का ट्री कवर है उसमें भी इजाफा किया जा सके, इसके साथ साथ ये सड़क खुशनुमा नज़र आए। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो यही ग्रीन बेल्ट जो कि अहमद चौक शमसानी रोड पर मौजूद है, ये किसी डंपिंग साइट का मंजर पेश कर रही है। जो इलाका मकीन है उनको कोई और सहूलत नहीं मिलती तो वो कूड़ा कटकट इस ग्रीन बेल्ट में फेंक देते हैं और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से इस इलाके की कोई सफाई नहीं करवाई जा रही। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो साफ़ पानी की फराहमी से भी महरूम हैं। लोगों से जो बात हुई उनका ये कहना था कि बारहा जो मुतलका इदारे हैं जिसमें वासा है उसको ये शिकायत दर्ज करवा चुके हैं कि घरों में गंदा पानी आता है, साफ़ पानी की फराहमी के लिए इक़दाम करें। लेकिन इन इदारों ने भी बिल्कुल उसी तरह ही काम किया जिस तरह जो ये उम्मीदवारान हैं ये कर रहे हैं। उम्मीदवारान भी दलासे दे रहे हैं और काम कोई नहीं करते, लेकिन जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरह का ही चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। इस वक्त NA 126 की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मलिक सैफुल मुलूक खोखर शेर के निशान पर इस हलके की आवाम से अपने वोट हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उनके बदे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तुकीर अब्बास खोखर हैं और जमात इस्लामी से अमीरुल अजीम यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी आज़ाद जो उम्मीदवार हैं और दीगर पार्टियों के जो लोग हैं मलिक सैफुल मुलूक खोखर और PTI के हमायत याफ्ता तुकीर अब्बास, जबकि जमात इस्लामी की अमीरुल अजीम मत मुकाबिल हैं। और ज़ैनुल आबिदीन इस वक्त NA 126 में मौजूद थे, वहाँ के मसाइल उजागर कर रहे थे। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। तो आपको बताएं कि हल्का PP 167 के मसाइल भी जूं के तूं बरकरार हैं। हल्के के अवाम पीने के साफ पानी से महरूम हैं, जबकि इलाके का सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो चुका है। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक अहम हलके PP 167 में, जिसमें पिछले साल 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर नज़ीर चौहान जो है वो 40,600 वोट लेकर कामयाब हुए थे। जबकि अब 2024 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जानिब से शफी खोकर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, अमार बशीर जो है वो इलेक्शन लड़े, जबकि तीसरे जो है वो यहाँ पे जमात इस्लामी के एक अहम उम्मीदवार जो है वो जिनका नाम चौधरी अब्दुल कयूम है, वो इस हलके से जो है वो इलेक्शन लड़े हैं। इस हलके में तकरीबन 1,36,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, और जबकि पिछले साल जो है वो 1,75,000 के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स इस हलके में मौजूद थे। लोगों से, इस हलके के लोगों से कुछ बात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल हैं मज़ीद इस हलके के। 2018 में भी यही मसाइल थे, गैस भी की कमी है और ये सड़कें ऐसी ख़राब है, जब बारिश आती है इतना इधर पानी खड़ा हो जाता है, इधर पानी खड़ा हो जाता है तो गाड़ियाँ फंड से गाड़ियाँ बंद हो जाती है, और ये गंदगी का देर इधर पड़ा रहता है, दो माह उठाने नहीं आते, और गरीब आवाम तो बहुत परेशान है, महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। तो ये वादे जो है वो पहले भी उम्मीदवार जो हैं वो लेके आते हैं आपके पास 2018 में, अब भी वो मेरे ख्याल से यही लेके आ रहे हैं, तो अब वोट क्या इरादे हैं वोट के? बस वोट को जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देगा, जो नहीं करेगा उसको वोट कैसे देगा। हम अपने हाथ की कमाई करके खाने वाले लोग हैं, हमें तो ये घर में आकर नहीं पूछता, जब वोट लेने होते हैं तब पूछते हैं कि आओ हमको वोट दो, हम तुमको अच्छा निज़ाम देंगे, वो नहीं करते सब। तो ये कुछ हल्के के मसाइल हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये कचरा है जो हल्के के लोगों का कहना है कि कभी उठाया ही नहीं जाता। हल्का अब इलेक्शन जो है वो करीब आ रहे हैं और इसी हवाले से अब साफ़ सफाइयों के इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं, निकासी आपके लिए पाइप भी डाले जा रहे हैं और सफाई का भी जो है वो निज़ाम बेहतर किया जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वोट लेने के लिए, हल्के के लोगों का कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ वोट लेने के लिए जो है वक्ती तौर पर किया जाता है, लेकिन मुस्तकिल हल किसी भी चीज़ का जो है वो नहीं किया जाता। 5 साल हो गए पिछले इंतखाबात को, अगले इंतखाबात जो है वो आ चुके हैं। इन 5 सालों में 2018 में किए गए वादे एक भी जो है वो वफा नहीं हुए। जी, लाहौर में 1970 के इलेक्शन में सूबाई असम्बली की 17 नशिस्तें थी, जबकि PP 71 से लेकर PP 87 तक की नशिस्तों पर 1970 का इलेक्शन हुआ और इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 14 जबकि दीगर जमातों ने सिर्फ 3 सीटें जीती हैं।
3 सीटें जीतने वालों में 2 आज़ाद उम्मीदवार और एक मरकजी जमीयत अहल-हदीस का था। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। इरमनाज, 170 के इलेक्शन देखे जाएं तो तब शहर लाहौर में सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें थी वो 17 थी, जो कि अब आबादी बढ़ने के साथ साथ अब ये नशिस्तों की जो तादाद है ये 34 तक पहुंच चुकी है। ताहम लाहौर में 1970 के इलेक्शन में PP 71 से लेकर PP 87 तक जो नशिस्तें थी उसके ऊपर इंतखाबात हुए और इस इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 14 और दीगर जमातों ने सिर्फ 3 सीटें जीती। इन 3 नशिस्तें जीतने वालों में 2 आज़ाद उम्मीदवार थे और एक मरकजी जमीयत अहले हदीस का कैंडिडेट था, जिसमें PP 84 से मरकजी जमीयत अहले हदीस के मलिक मोहम्मद अली खान कामयाब हुए। मोहम्मद अली ने 30,846 वोट लिए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शेर मोहम्मद भट्टी 16,001 वोट ले सके। जिन 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए वहां पर भी जबरदस्त मुकाबला देखने में आया, जिसमें PP 86 से आज़ाद उम्मीदवार राना फूल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदवार मोहम्मद जुबैर खान थे, जिसमें राना फूल ने 33,165 और जुबैर खान ने 30,229 वोट हासिल किए। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि राना फूल मोहम्मद नून लीग के पिछले दौर में स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल के वालिद थे और लाहौर से कुछ फासले पर जो इलाका है भाई फिरू, उसका नाम भी फूल नगर राना फूल मोहम्मद खान की ऑनर में रखा गया था। इसके अलावा PP 87 में भी इंतहाई दिलचस्प मुकाबला देखने में आया, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आशिक फतेहमंद रहे। मोहम्मद आशिक ने 26,327, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मोहम्मद तकी ने 20,841 और सरदार शौकत ने 20,838 वोट हासिल किए थे। पंजाब असम्बली के बाकी मानदा तमाम नशिस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वाज़े मार्जिन से जीते, जिसमें PP 71 से शेख सफदर अली एडवोकेट 28,979 वोट लेकर कामयाब हुए। इसके अलावा राना नजरुर रहमान नवाबजादा नसरुल्लाह खान की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। PP 72 की बात की जाए तो 1970 में PP 72 से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हफीज कारदार जीते। अब्दुल हफीज कारदार ने 28,654 वोट लिए, जबकि इनके मद्दे मुकाबल PDP के मलिक मोहम्मद हुसैन 7,134 वोट ले सके। 1970 में ही लाहौर के PP के हल्का 73 से मलक गुलाम नबी पीपल्स पार्टी के टिकट से 25,335 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि कयूम ग्रुप के हाजी हुसैन को सिर्फ 509 वोट मिल सके। PP 74 से इफ्तिखार अहमद तारी जीते। दूसरे नंबर पर कन्वेंशन मुस्लिम लीग का उम्मीदवार था। मियां इफ्तिखार अहमद तारी ने 28,871 वोट, जबकि कन्वेंशन लीग के शेख हफीज को 7,061 वोट मिल सके, जो कि इस चीज की गुमाजी कर रहा है कि 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में एक मजबूत जमात थी। यही वजह है कि उन्होंने 17 में से 14 नशिस्तें अपने नाम की थी। इसके अलावा दीगर हलकों की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो PP 75 से पीपल्स पार्टी के टिकट से चौधरी रफीक 23,289 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 76 से हनीफ रामे ने 40,159 वोट लिए। मोहम्मद हनीफ रामे आलमी शोहरत के हामिल एक शानदार खतात, पेंटर, सहाफी, दानिश्वर और मुतब्बर थे। पीपल्स पार्टी के बानी अरकान में शामिल हनीफ रामे पंजाब असम्बली के स्पीकर और फिर वजीर आला भी रहे। PP 70 से भी पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की, जहां पर मियां रफी ने 28,466 वोट लिए। PP 78 से मिर्जा ताहिर बेग 29,249 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 79 से शेख असगर को 40,542 वोट मिले। PP 80 से रऊफ ताहर ने 35,499 वोट लिए। 1970 के जो नतायज हैं उसके ऊपर नजर डाली जाए तो उस वक्त PP 81 से मलिक शाह मोहम्मद मोहसिन ने 36,893 वोट लिए और इनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग कन्वेंशन के मलिक हयात ने 9200 वोट हासिल किए। तो ये 1970 के नतायज हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं वो भारी मार्जिन से लाहौर से कामयाब हुए और लाहौर की कुल 17 नशिस्तों में से 14 नशिस्तें हासिल करके उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेटी और उनके मद्दे मुकाबिल 2 आज़ाद उम्मीदवार और एक मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के उम्मीदवार कामयाब हो सके। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे और 1970 के इलेक्शन के हवाले से तमाम तफसीलात अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन।
तो आपको बताएं कि हल्का PP 170 में मसाइल के अंबार हैं और हल्के की सड़कों की बात की जाए तो हल्के की सड़कें गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। मकीन पीने के साफ पानी से महरूम है, जबकि कच्चा जेल रोड, शादमान, ज़ोहरी राही रोड समेत दीगर इलाके भी इसी हल्के का हिस्सा हैं। बात करेंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। बिल्कुल, लाहौर के हल्का PP 170 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो कि मक्का कॉलोनी का इलाका जो है वो कहलाता है। 7 अप पुल भी जो है ये कहलाता है। इस हल्के के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उन पे बात की जाए तो कच्चा जेल रोड, गवर्नर हाउस, शादमान, ज़ोहरी राही रोड, गुलबर्ग 3 के मुख्तलिफ ब्लॉक इस हल्के में आते हैं। इसी तरह फिरोजपुर रोड, आडिट कॉलोनी, मक्का कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी और फिरदौस मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाके हैं। हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि यहाँ के कौन कौन से मसाइल जो है वो हल तलब है, जिसमें पानी है, सफाई है। सफाई के इंतजाम खासे नाकिस नजर आ रहे हैं यहाँ। बिल्कुल सफाई की उस वक्त तक जब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आला था उस वक्त तक तो बिल्कुल सफाई और सुथराई बहुत अच्छी होती थी यहाँ पे, और चेक एंड बैलेंस भी था। और जब से यहाँ पे PTI आई है तो उसके बाद ना इधर सफाई है, पानी का बहुत मसला है, गैस का बड़ा मसला है यहाँ पे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि PTI का जो दौर गुजरा है यहाँ पे इस हल्के में, शफकत महमूद था यहाँ पे, 2 दफा यहाँ से वो जीत के गया है, उसने कोई काम नहीं करवाया। यहाँ पे क्या 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 मसाइल हैं जो कि हल तलब है आपके ख्याल में, क्योंकि इलेक्शन है, गहमा गहमी अवामी नुमाइंदे भी आपके पास आते होंगे? सर जी अवामी नुमाइंदे तो कल भी आए ने, लेकिन मकसद इस चीज का है कि बिल बहुत ज्यादा आते हैं, इतना यूजिंग नहीं है जितना बिल आ जाता है। जी बिल्कुल, आपने जो है इलाका मकीनों की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि यहाँ पे सफाई सुथराई के साथ साथ पानी के भी जो है मसाइल है, पीने के साफ पानी के मसाइल जो है वो हल होना जरूरी है। नए ट्यूबवेल की इस इलाके में जरूरत है। लोगों की जानिब से जो है मुख्तलिफ मसाइल भी बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन की गहमा गहमी है, अवामी नुमाइंदे यहाँ पे वोट के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये भी इल्म होना चाहिए कि इस इलाके के कौन से मसाइल हैं जो जीतने के बाद वो इन मसाइल का हल कर सके। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। हल्का PP 151 के उम्मीदवार सुहेल शौकत बट की नकाबी मुहिम जारी है। हांडू गांव में गुलाम हसन गुजर और अरशद गुजर की जानिब से जलसे का एहतमाम किया गया, जबकि सुहेल शौकत बट की खुसूसी शिरकत और कहा कि कामयाबी के बाद तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाएगा। कितनी सदाकत है इस बयान में बताएंगे मुजाहिद लतीफ़। बताइए मुजाहिद। जो इलेक्शन 2024 की बिल्कुल आमद है और PP 151 के उम्मीदवार सुहेल शौकत बट की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो काफी तेजी के साथ जारी हैं और 151 का ही इलाका है, हांडू गांव इसको कहा जाता है। यहाँ पे गुलाम हसन गुजर और अरशद गुजर ने यहाँ पे जलसे का एहतमाम किया और इस मौके पर सुहेल शौकत बट ने जलसे से खिताब भी किया। इस हवाले से सुहेल शौकत मुजाहिद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच की रहमानपुर आमद नाश्ता पॉइंट्स पर वोटर से मुलाकात की। अहमद सलमान बलोच ने नौजवानों के साथ नाश्ता किया और मसाइल पर गुफ्तगू भी की, जबकि कहा कि नौजवान हमेशा हर मुहाज पर अपना किरदार अदा करते हैं। बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। हमजा से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच के रहमानपुर आमद नाश्ता पॉइंट्स पर वोटर्स से मुलाकात की, जबकि अहमद सलमान बलोच ने नौजवानों के साथ नाश्ता किया और मसाइल पर भी गुफ्तगू की। हमजा से राब्ता बहाल हुआ है, उनसे बात करेंगे। बताइए हमजा। 169 अहमद सलमान बलोच की रहमानपुरा हल्का में नाश्ता पॉइंट पर अहले मोहल्ला से मुलाकातें। अहमद सलमान बलोच ने नौजवानों से तराजू की हमायत के लिए वोट मांगा। अहमद सलमान बलोच ने नौजवानों के साथ नाश्ता किया और नौजवानों के मसाइल पर गुफ्तगू की। नौजवान हमेशा हर मुहाज पर अपना किरदार अदा करते आए हैं, ये कहना था इस मौके पर अहमद सलमान बलोच का। जबकि अहमद सलमान बलोच का मजीद कहना था 5 फरवरी का दिन जुल्म के खिलाफ खड़े होने का दिन है। अवाम आज के दिन अहद करे वो बेहिस हुक्मरान जो ना पाकिस्तान की अवाम को इंसाफ दे सके और ना ही पाकिस्तान के चेहरे को भारतीय मुजालिम से बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर सके, उनके खिलाफ वोट देंगे। जमात इस्लामी वो वाहिद सियासी जमात है जिसने पाकिस्तान में गजा के लिए, कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद की है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमजा।